Hello students. Today we are starting the. Today we will start the nutrition in human. Nutrition in animal. Before it, there are something in the photosynthesis. Last turn we have talked about photosynthesis process, mechanism of photosynthesis. In that we was talking about that the photosynthesis mechanism can be divided into two parts: light reaction and the dark reaction. We will discuss all the complete process. We have discussed all the complete process of the mechanism, light reaction as well as dark reaction also. After this mechanism, there are something which can affect the photosynthesis process, like temperature, like amount of water, like concentration of CO2, like nature of the light. So these are the things which affect the photosynthesis process. Firstly, if we talk about the temperature, till the 40 degrees centigrade, if we are increasing the temperature, then the photosynthesis process will be increased. But after the 40 degree centigrade temperature, the photosynthesis process will be decreased. यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तब तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ेगी, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, जो उसकी स्पीड है, वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि उल्टी हो जाएगी, घटने लग जाएगी. इसके बाद में सेकंड अगर अफेक्टिंग फैक्टर की बात करें तो हम CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं. CO2 की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो एक फिक्स लेवल तक, एक लिमिट तक अगर हम CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो स्पीड है, जो मैकेनिज्म है, वो इंक्रीज होती जाएगी. लेकिन एक फिक्स कंसंट्रेशन और लिमिट पर जाकर के CO2 जो है वो नेगेटिव या लिमिटिंग फैक्टर में आ जाएगी. यानी कि CO2 इंक्रीजिंग की एक लिमिट क्रॉस होने के बाद फोटोसिंथेसिस वापस क्या होना चालू हो जाती है, डिक्रीज होना चालू हो जाती है. अगर CO2 के बाद हम बात करें नेचर ऑफ लाइट, तो ये हम पढ़ते टाइम ही देख चुके थे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो नेचर ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब होती है वो विजिबल रीजन की होती है. अब विजिबल रीजन में टोटल 7 कलर्स होते हैं. 7 कलर्स में से अगर फोटोसिंथेसिस में जो लाइट दी जा रही है वो रेड या ब्लू कलर की है, रेड और ब्लू कलर की है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बढ़ जाती है, उसकी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है. लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस में ग्रीन कलर की लाइट प्रोवाइड करवाई जाए, ग्रीन कलर की लाइट हम उसको प्रोवाइड करवाएं, लो वेवलेंथ की लाइट उसको हम प्रोवाइड करवाएं, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी या बंद हो जाएगी. ठीक है. और लास्ट लिमिटिंग फैक्टर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर जो है वो वैसे तो फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करता है, बट अगर कंसंट्रेशन एक फिक्स लिमिट से कम है या ज़्यादा है वाटर की, तो फिर ये एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करना चालू कर देता है. सो वी कैन से देयर आर 4 अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट इज temperature, second is concentration of CO2, carbon dioxide, third is nature of light, and fourth is H2O, means water. These are 4 affecting factors for the photosynthesis process. If we are talking about the temperature, the photosynthesis process will be increased till the 40 degree centigrade temperature, but after that the photosynthesis process will be decreased. ठीक है. CO2 concentration at a limit, if we increase the concentration of CO2, then the photosynthesis will be increases, but after a particular limit the photosynthesis process goes decrease. Light in the red and blue colored light, the photosynthesis will be maximum, and in green colored light the photosynthesis will be negligible or lower. H2O sometimes becomes limiting factor. When the concentration of H2O is very low at the particular limit and very high for the plant. So these are the 4 affecting factors of photosynthesis. पहला temperature, second CO2, third जो है वो light है, और fourth है H2O. These are the 4 limiting factors. तो ये हमने देखा न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से बनता है, किस प्रोसेस से फूड बनता है, किस प्रोसेस कैसे इनके अंदर मैकेनिज्म होती है, कितनी इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये हम इसमें देख चुके हैं.
नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स के अंदर। मीन्स ऑल द एनिमल्स हैविंग द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मैं ये नहीं बोलना ज़्यादा सही नहीं है कि सभी में यही होता है, लेकिन मैक्सिमम जो एनिमल्स है उनके अंदर होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही प्रेजेंट होता है, विच कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स। जो कि कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होता है? 5 स्टेप्स में। तो पहला पॉइंट हमको यही ध्यान रखना है कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है। कौन सा न्यूट्रिशन होगा इनके अंदर? होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। अब एनिमल्स की बात करें तो अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो कई सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर ह्यूमन की अगर बात करें तो इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का, यानी कि इसकी जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। मीन्स हर पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होगा। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ये बात करनी है कि एनिमल्स यूनिसेलुलर जो है उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होगा। अब देखिए यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स सिंगल, यानी कि इन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सिंगल सेल से मिलकर के बनी हुई है, एक ही सेल से मिलकर के बनी हुई है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर कहलाएंगे। और इनके एग्जाम्पल में हम बात करेंगे अमीबा की, अमीबा, पैरामीशियम और हम थर्ड बात करेंगे यूग्लिना। ये 3 हैं जिनकी हमको यहाँ पर बात करनी है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबा की, न्यूट्रिशन इन अमीबा। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा की अगर बात करें तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमको पता है। दिस इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स द बॉडी ऑफ अमीबा विल इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल की इसकी बॉडी बनी हुई होती है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो इसका जो बॉडी शेप है वो इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर शेप बॉडी, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो फिक्स शेप में नहीं होती है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कभी वो स्पाइरल भी हो सकती है, कभी वो सर्कुलर स्फेरिकल भी हो सकती है। मींस इसकी बॉडी के ऊपर प्रॉपर एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता, और एक्सोस्केलेटन की एब्सेंस होने की वजह से अमीबा की जो बॉडी है उसकी शेप इर्रेगुलर होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अमीबा एक इर्रेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसकी बॉडी की शेप इर्रेगुलर होती है। ये इसकी बॉडी हमने बना दी और ये इसके अंदर का साइटोप्लाज्म हमने फिल कर दिया है। ठीक है, अब जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास में आता है, अमीबा के पास में आता है, तो होता क्या है कि उधर जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सेंसेशंस जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन जो है वो ग्रो करके और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू उस फूड पार्टिकल को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। ये आपका अमीबा, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, और ये इसने फूड पार्टिकल्स को क्या कर लिया? कवर कर लिया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलेंगे? शूडोपोडिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शूडोपोडिया। ये शूडोपोडिया है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या है? शूडोपोडिया। शूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है शूडो मीन्स होता है फॉल्स, शूडो मीन्स फॉल्स, और पोडिया मीन्स फीट। शूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट, यानी कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ये जो स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक, ये शूडो होती है, मीन्स फॉल्स होती है। फॉल्स इसलिए होती है
क्योंकि इनकी जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये बन जाती है, और जब इनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ये वापस डिजोल्व हो जाती है, वापस गायब हो जाती है। तो इसलिए इनको क्या बोला है, स्यूडोपोडिया। तो चलने के लिए, फूड पार्टिकल को पकड़ने के लिए, जब भी ज़रूरत होगी तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे और बाद में गायब हो जाएंगे। तो इसी वजह से इनको फोर्स फीड की कैटेगरी में भी रखा जाता है। अब ये क्या करेगा, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है वो कंप्लीटली आपस में मिल करके और एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना लेगी, और इस स्पेरिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल बोलेंगे। यहाँ पर जो स्यूडोपोडिया बने थे, ये स्यूडोपोडिया में डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, ये स्यूडोपोडिया थे, इन्होंने कंप्लीट इसको एक फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा, फूड वैक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद ये अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अमीबा के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इस फूड वैक्यूल में चले जाते हैं, गोज इनसाइड द फूड वैक्यूल, और ये जो फूड पार्टिकल है इसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। फूड पार्टिकल को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। यानी कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, वो होती है इंजेशन। इंजेशन के लिए किसने हेल्प करी है, स्यूडोपोडिया ने। किसके थ्रू इंजेस्ट हुआ है, फूड वैक्यूल के थ्रू इंजेस्ट हुआ है। ठीक है, इंजेशन होने के बाद में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इसके अंदर जाकर के इस फूड पार्टिकल का डाइजेशन कर देंगे, और फूड पार्टिकल जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यूजफुल मटेरियल है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और इस फूड वैक्यूल के अंदर कचरा भर दिया, यानी वेस्ट मटेरियल जो पड़ा हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल और वेस्ट मटेरियल, वो छोड़ दिया जाएगा, और बाद में इस फूड वैक्यूल को बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यानी इसमें हुआ क्या, सबसे पहले तो अमीबा एक यूनिसेलुलर इरेगुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके जो बॉडी के पास में अगर कोई भी फूड पार्टिकल आता है तो सेंसेशंस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, जिनको कि स्यूडोपोडिया बोला जाता है। ये स्यूडोपोडिया जो है वो आगे चल करके फूड वैक्यूल को बनाते हैं, और फूड वैक्यूल के थ्रू ये फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं, इंजेक्शन कर लेते हैं फूड का, और फिर उस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स चले जाने के बाद में फूड जो पार्टिकल है उसका डाइजेशन कर दिया जाता है। फूड पार्टिकल का डाइजेशन होने के बाद में जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को उसी फूड वैक्यूल में डाल करके बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, इजेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, दिस वाज द न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसमें 5 स्टेप्स हमने काउंट की, कैसे की, सबसे पहले तो फूड को अंदर लिया गया स्यूडोपोडिया की हेल्प से, दिस वाज इंजेक्शन। After that, by the help of the digestive enzymes, the food will be digested. The food has been digested in food vacuole. Food vacuole के अंदर food को जो है digest कर लिया, तो this was second step, digestion. Third step, the nutrients and the important things of this particular food particle will be absorbed in amoeba. Amoeba के अंदर इसको absorb कर लिया जाएगा. This was the third step, absorption. फोर्थ स्टेप एसिमुलेशन जो है वो यूटिलाइजेशन और इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ही है। तो ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो एसिमुलेशन प्रोसेस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, फटाफट हो जाता है। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको फूड वैक्यूल में डालकर ही बॉडी से बाहर इजेस्ट कर दिया जाएगा। दीज 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन आर काउंटेड इन द अमीबा न्यूट्रिशन। सो अमीबा शोइंग द होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये आपका अमीबा का जो है न्यूट्रिशन कंडीशन है। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम की बात करें तो ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी एक यूनिसेलुलर ही ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन यहाँ पर इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी जो है वो रेगुलर शेप्ड होती है, यानी कि इसकी बॉडी जो है एक फिक्स शेप में रहती है। और इसकी बॉडी की शेप कैसी होती है, स्लीपर लाइक शेप होती है। स्लीपर लाइक यानी कि चप्पल की जैसी। ठीक है, तो ये आपका पैरामीशियम में इसकी बॉडी के ऊपर चारों तरफ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और ये छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को सीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। इन स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। देखिए अभी हम यूग्लिना जब पढ़ेंगे तो यूग्लिना में भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ही आएंगे, तो वहाँ पर हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे और वहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन देख लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रिशन में जो पैरामीशियम है इसकी स्ट्रक्चर होती है स्लीपर लाइक, इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पैरामीशियम के आसपास आएगा, तो फूड पार्टिकल जैसे ही पैरामीशियम के आसपास आया
तो ये सीलिया के थ्रू उधर की तरफ मूव करेगा और मूव करने के बाद में इस फूड पार्टिकल को सीलिया के थ्रू पकड़ करके बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर पोर है वो इस ओस्टिया है उसके थ्रू बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लिया जाएगा इस फूड पार्टिकल को। ठीक है, फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करने के बाद में इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पोर कर दिए जाएंगे, छिड़क दिए जाएंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे इसके ऊपर डाले जाएंगे तो इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यूटिलाइज कर लिया जाएगा, एसिमुलेट कर लिया जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है उसको इसी सेम पोर के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर इसकी जो शेप होती है वो रेगुलर होती है, मींस इसकी शेप फिक्स शेप में होती है, स्लीपर लाइक होती है। इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कि सीलिया बोला जाता है। जैसे फूड पार्टिकल इसके आसपास होता है तो ये सीलिया के थ्रू उधर की तरफ मूव करता है और फूड पार्टिकल को सीलिया के थ्रू पकड़ करके ओस्टिया से बॉडी के अंदर ले जाता है, मीन्स इंजेक्शन कंप्लीटेड। देन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके ऊपर छिड़के जाएंगे जिससे कि क्या होगा, फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो जाएगा, मीन्स सेकेंड स्टेप complete digestion. After that digested material means nutrients will be absorbed in the body of paramecium. इसको जो बॉडी में जो यूजफुल मटेरियल है जो फूड पार्टिकल के उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, मीन्स थर्ड स्टेप कंप्लीटेड एब्जॉर्प्शन। आफ्टर दैट इनको यूटिलाइज करके एसिमुलेट कर दिया जाएगा, फोर्थ स्टेप एसिमुलेशन। और लास्ट में जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उनको उसी सेम पोल से बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा, मीन्स इजेशन। These 5 steps are counted in this nutrition, so this is also holozoic nutrition. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका यूग्लिना। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये थर्ड है यूग्लिना। यूग्लिना की अगर हम बात करें तो यूग्लिना वैसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी अगर बॉडी की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर है और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में एक स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या है, पहली बात अगर पैरामीशियम से कंपेयर करें तो इसकी बॉडी पर भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, लेकिन वो लेंथ में ज़्यादा और नंबर में कम होते हैं और कंप्लीट बॉडी पर नहीं होते हैं, पर्टिकुलर पार्ट पर होते हैं। ये तो कंप्लीट बॉडी पर थे, लेंथ में कम थे, नंबर में ज़्यादा थे, संख्या में ज़्यादा हैं, लंबाई में कम है, लेकिन वो संख्या में तो कम है, नंबर में तो कम है, लेकिन लेंथ में ज़्यादा है। तो इनको बोला जाता है सीलिया, इनको बोला जाता है फ्लैजिला। ठीक है, जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कंप्लीट बॉडी पर होती है, नंबर में ज़्यादा होती है और लेंथ में कम होती है, वो सीलिया होती है। और जो पर्टिकुलर पार्ट पर होती है, लेंथ में ज़्यादा होती है, नंबर में कम होती है, उनको क्या बोला जाता है, फ्लैजिला। काम सेम ही है दोनों का, चलने का और फूड पार्टिकल्स को पकड़ने का। इसके अलावा इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और होती है जो होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल हम बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक स्पेशल कंडीशन देखने को मिलेगी कि अगर सनलाइट प्रेजेंट है, अगर सनलाइट प्रेजेंट है इन सनलाइट अगर सनलाइट है तो ये कैसा न्यूट्रिशन शो करेगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है। और इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट एब्सेंस ऑफ सनलाइट में कैसा न्यूट्रिशन शो करेगा, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेगा। बात समझ में आई। यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल होता है तो सनलाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड खुद तैयार कर लेता है, मीन्स ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है। लेकिन अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी तो फिर ये एनिमल्स की तरह हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है, मीन्स ये प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है और एनिमल की तरह भी बिहेव कर रहा है। इसलिए यूग्लिना को हम कनेक्टिव लिंक बोलेंगे, यूग्लिना को हम कनेक्टिव लिंक बोलेंगे। किस किस के बीच का, बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक इसको हम बोलेंगे। या फिर इसको हम ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स के बीच की कनेक्टिव लिंक भी बोल सकते हैं। यूग्लिना को हम प्लांट और एनिमल या ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स के बीच की कनेक्टिव लिंक बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग द क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल बिहेव लाइक द ऑटोट्रोप एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इट विल बिहेव लाइक द हेटेरोट्रोप। दिस वाज द कंडीशंस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वी हैव टॉक्ड अबाउट अमीबा, वी हैव टॉक्ड अबाउट पैरामीशियम, lastly we have talked about यूग्लिना. All the three are showing the same type of nutrition, holozoic, but different manners.
In amoeba, the shape is irregular, so it will take the food and nutrition in the help by the help of the pseudopodia, and it will complete the process of digestion with the help of food vacuole. After that, in paramecium, the shape is regular, and it will take the food with the help of cilia and particular pore, and same process will be repeated. And euglena, there is a particular structure, flagella is present and chloroplast is present. So there in the sunlight it will show autotrophic nutrition, and in the absence of sunlight it will show heterotrophic nutrition. ठीक है, this was the nutrition in unicellular organism. In the next class we will talk about the nutrition in multicellular organism, and we will talk about we will start the human digestive system. नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे. ठीक है, थैंक यू.